वेलकम टू जेनिथ कोचिंग क्लास। जेनिथ कोचिंग क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, आई एम आल्सो फाइन। सो टुडे इज अ क्लास ऑफ फैक्टराइजेशन. It's a very important class for CBSE, ICSE and all other boards. Okay, so what I have to say first, please like my video and share to your friends, subscribe my channel and please comment me through your comment box. आप लोग कोऑपरेट करते हैं इसलिए तो मैं आप लोगों के साथ सामने आती हूँ पढ़ाने के लिए. So please like my video. Okay, so now start the class. This factorization, here are some rules here. Then I'll go to solve the problems. Okay, first one is a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, so on. That is n minus 1. Here I started from 0, 0, 1, 2, so up to n minus 1. And whereas variables are x to the power n, x to the power n minus 1, x to the just opposite, x to the power n minus 2, so up to x. That is, here these are called real numbers and here non-negative integers. That is, n minus नहीं होना चाहिए, इसको minus नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा प्लस में रहना चाहिए. Non-negative integer, that is n. So it's called polynomials and its variable is x here. Okay, and if you like to write y, then a0 n y to the power n, a1 y to the power n minus 1, so on. So we write x here, that is variable x. Okay, next, if a equals not equals to 0, इस a को 0 नहीं होना चाहिए. अगर इसमें a 0 होता है तो 0 multiplied x to the power n, that is 0. Okay, so if a is not equal to 0, then n is the degree. Here n is the degree, n minus 1, n minus 2, so on. Degree, that is 2 x to the power 3 minus 4 x to the power 2 plus 3 x to the power 1 and then constant term x to the power 0. Okay, I'll give you some examples after some time. Then a to the power n is a constant term. A is not equal to 0. Then n is the degree of the polynomial. Okay, n minus 1, n minus 2. So these are indices, that is power, that is degree of polynomial. Now a to the power n is the constant term. Here is no x here. Okay, so no variables here. So a to the power n is a constant term. If x to the power 0, x to the power 0 is 1. So अगर हम लोग लिखते हैं 7x to the power 0, that is x to the power 0 means 7 multiplied by 1. So 7 is a constant term here. Okay, I'll give you some examples later. Then number 3, the polynomials are denoted by fx. हम लोग क्या लिखते हैं? fx, gx, px, hx, etc. मतलब x is the variable here. Now a0, a1, a2, a0, a1, a2 is called coefficient of x. That is 2x. x का coefficient क्या है? 2 है. Like that, a0, a1, a2, so on are coefficient of fx. And if coefficient is 0, अगर coefficient 0 होता है, that is a is 0, तो a is 0, that is a0 x, तो multiply करने से अगर इसमें a 0 होता है, इसमें a 0 होता है, x किसी भी नंबर हो, किसी भी वेरिएबल हो, लेकिन ये क्या होता है? 0 हो जाता है, तब इसको कहता है जीरो पॉलिनोमियल. ओके, नाउ इफ a0 is not equal to 0, इसका अगर 0 नहीं है तो then a0 x to the power n is a leading term, that is 2x square, 4x cube, 5x to the power 7. Okay, that is proper variable, that is उसका कोई डिग्री होता है. नेक्स्ट नंबर 7, if degree of fx is 0, अगर इसका डिग्री 0 होता है, अभी मैं ये समझाई हूँ, if degree of fx is 0, then fx is a non-zero constant term, that is it is called c here. I'll tell you later. That is, now these are the concept here. Okay, so we have to think about polynomials and we have to factorize. Okay, yeah, you know that middle term factor, Caesar-Archer's rule, I taught you in the previous classes. Now it is, that is factorization. How to factorize the polynomial. Okay, so पहले concept को clear कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग sums करते हैं.
So now start the sums. I'll teach you some several sums, but you have any question, then please let me know through your comment box, and I'll teach you in the later classes. Okay? Now, first one is, that is, and here is a linear polynomial, quadratic polynomial. That is, linear polynomial is, that is 2x plus 7, 2x plus 7. So x का डिग्री कितना होता है 1. So इसको कहते हैं linear polynomials. Okay. Now quadratic polynomials. Quadratic means that is power is 2. So 2x square plus 3x plus 8. So here is degree 2, here is degree 1, and here is, you know, degree is 0. That is constant term. If the x का degree अगर 0 होता है, तो किसी की power 0 होता है, तो that is 1. A to the power 0 is 1. P to the power 0 is 1. 2 to the power 0 is 1. So here 8. 8 is the constant term here. So 8 is the constant term here. That is 8 multiplied by x to the power 0. Okay. So it is called quadratic polynomial, because first degree of this polynomial is 2. Okay. Now cubic. Supposing 5x cube plus 9x square plus 3x plus 6. That is, here is first one is degree 3, then degree 2, then degree 1, then degree 0. So degree is here cube. Then it is called cubic polynomial. Now biquadratic polynomial. Biquadratic means that is 5x to the power 4 plus 3x cube plus 2x square plus 6x plus 2. That is 6x to the power 1, 2x to the power 0. It is not quadratic. It is linear polynomial, degree 1. Sorry. It is degree 2, 2x square. That is quadratic polynomial. That is degree 3. That is cubic polynomial. And it is power 4. First power is 4. So it is biquadratic polynomial. Okay. Then here is dividend, divisor, quotient, and remainder. So dividend you can write fx. Okay. Divisor you can write gx. Quotient you can write qx, and remainder you can write, don't write capital letter here, qx, and remainder you can write rx. All the variables are denoted by x here. Okay. Now it is called division algorithm. So dividend equals to division multiplied by quotient plus remainder. You know? Okay. Now we'll go to the sums. If you have any questions, please let me know through a comment box. Please comment कीजिए मुझे, मैं next class में आप लोगों को वो सिखा दूँगी. Okay. Then first sum is find the remainder. Okay, without actual division. Find the remainder on dividing fx. So on dividing fx, मैं अभी आप लोगों को सिखाई हूँ ना कि fx, that is it is dividend. fx that is by 2x plus 1. 2x plus 1 से अगर fx को आप लोग डिविजन करें तो when fx equals to, now fx equals to 3x cube minus 7x square plus 4x plus 11. Okay. So find the remainder without division on dividing fx by 2x plus 1 when fx equals to 3x cube minus 7x square plus 4x plus 11. हम लोग को क्या करना है, इनको क्या रिमाइंडर निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग को डिवीजन नहीं करना चाहिए. तो हम लोग को क्या करते हैं, सोचिए हम लोग इससे डिवाइड करते हैं. ओके. सो 2x plus 1 equals to 0 अगर ये फैक्टर होता है तो. ओके. तो देन 2x equals to
minus 1. So x equals to minus 1 by 2. अब f(x) का जगह में हम लोग क्या लिखते हैं? x का जो वैल्यू होता है minus 1 by 2. ओके, सो हम लोग को क्या लिखना चाहिए अभी? ये वेरिएबल के जगह में हम लोग को 1 minus 1 by 2 लिखना है. ओके, सो 3 multiplied by minus 1 by 2 cube minus 7 multiplied by minus 1 by 2 square plus 4 multiplied by minus 1 by 2 plus 11. Okay, so 3 multiplied by minus 1 by 2 cube, that is minus 1 by 8 plus, sorry, not plus, I have to write here minus 7 multiplied by minus, that is 1 by 4 plus, and here is minus. So plus minus, that is you have to write minus here. 4 multiplied by 1 by 2 is 2. Okay, so 2 plus 11. So here minus, you have to write here minus 3 by 8 minus 7 by 4 minus 2 plus 11, that is plus 9 here. Okay, so what is the LCM here? 8 here. So minus 3 minus, here is 2, 2 7 is 14. 14 plus 72. Here is 9 here, so 72. So 72 minus 17. Minus 17 plus 72. Here is 8. So 72, that is 7. 7, 5. Okay, 1 adding. So here is 5. Okay, so 55 divided by 8. X is a 48. 7 by 8. So what is the remainder here? 6 और 7 by 8. So हम लोग को जो फैक्टर चाहिए, ये फैक्टर से हम लोग पहले x का वैल्यू निकालते हैं. So f(x) मतलब ये x का जगह में ये x का वैल्यू पुट अप करके हम लोग को इसको निकालना है. So this is the remainder. Understood the sum? Okay. I'll go to the next sum. Now, very easy sums these are, not at all tough, and it is very scoring. इरेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. Now, question number 2. That is, next this type of sum I will teach you another. f(x) 3x square plus 5x, 3x square plus 5x minus 9. Okay, and here is 3x square plus 5x minus 9 by 3x plus 2. 3x plus 2 here. So that is 3x plus 2, what to do? 3x plus 2 equals to 0, I will consider. Then 3x equals to minus 2. That is x equals to minus 2 by 3. Okay. Now put the value of x here. So minus 2 by 3 here. So what you have to do? 3 multiplied by minus 2 by 3 square plus 5 multiplied by minus 3 by 2 minus 9. We have to find out remainder. Okay. So 3 multiplied by 4 divided by 9. When it is a negative number, so if the power is that index is even number, then it will be always positive. And if the power is 3, that is odd number, so always power number is negative. So minus 2 square is always 4, but minus 2 cube, so it is always minus 8. So if the power is even, the number is positive. If the power is odd, the number is negative. Okay. So minus 2 by 3 square is positive number. 4 by 9 plus minus minus.
5 multiplied by 3, that is 15. 15 divided by 2, minus 9. So cut here 3. So 4 by 3 minus 15 by 2 minus 9 by 1 here. So LCM is 6. 3 multiplied by 2, 6. 2. 2, that is 8. Minus, that is 3. 3, 45 here. Minus 6. 6, 9, 54 here. So 8 minus 4 plus 5, 9. And here is 9 divided by 6. So minus 91 by 6. Minus 91 by 6. So इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस 91 डिवाइडेड बाई 6. और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डिविजन कर सकते हैं. माइनस 15 6 और 90, that is 15 whole 1 divided by 6. You can write it also. Okay. Then next number. Sum easy है ना? Easy तो है. So now next number, different types of sum I'll teach you. You have to find out remainder here, and you found out remainder minus 15 whole 1 by 6. Okay. Next sum I'll go. Question number 3 here. Question number 3, using remainder theorem, again find the value of k. आपको k का वैल्यू निकालना है. Using remainder theorem, find the value of k if on dividing 2x cube, that is fx equals to 2x cube plus 3x square minus kx. You have to find out the value of k. Okay. Plus 5 किससे डिवाइड करना है, बाय x minus 2 इसे डिवाइड करना है. अब रिमाइंडर बोल दिया है आप लोगों को, लीव्स रिमाइंडर 7. ये रिमाइंडर कितना है, दैट इज rx कितना है, 7 होता है. ओके. सो हम लोग को लास्ट जो सम, पहले दोनों जो सम सिखाई थी उसमें आप लोग को रिमाइंडर निकालना चाहिए था. यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, एंड हियर रिमाइंडर ये आप लोग को क्वेश्चन में बताया है. रिमाइंडर इज 7 एंड फैक्टर इज x minus 2. आपको क्या करना चाहिए, k का वैल्यू निकालना चाहिए. वेरी इजी सम. देखिए, सो fx, नाउ x minus 2 equals to 0, that is x equals to 2. अब इसका वैल्यू लगा दीजिए इधर. सो if 2, that is 2 multiplied by 2 cube plus 3 multiplied by 2 square minus k multiplied by 2 plus 5. Okay. So 2 cube is 8 here. So 2 multiplied by 8 plus 2 square is 4. So 3 multiplied by 4 here minus 2a plus 5. So 2 8 16 plus 3 4 12 plus 5 minus 2k. So 16 plus 12 28. 28 plus 5 33 minus 2k. अब देखिए आपको ये बोला है कि ये 0 है, that is x minus 2 equals to 0. So हम लोग ये कर सकते हैं, ये फैक्टर है, x minus 2 फैक्टर है. अगर x minus 2 फैक्टर है तो उससे मैं डिवाइड करती हूँ तो कोई रिमाइंडर नहीं निकलेगा, 0 होता है. क्योंकि सोचिए हम लोग कहते हैं कि 12 का फैक्टर है 6, मतलब 12 को 6 से डिवाइड करने से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा. ठीक है. सो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, therefore 33 minus 2k equals to 0, but here is remainder is 7. Okay. ठीक है. So 33 minus 2k is 7. So minus 2k equals to 7 minus 32. So minus 2k equals to 33 minus 3, 30, that is 26. Minus 26, so cancel minus. So k equals to 26 divided by 2, that is k equals to 13 here. So it was a remainder 7. आप लोग को प्रीवियस दोनों सामने रिमाइंडर निकालने के लिए बोलता है, फाइंड आउट रिमाइंडर, बट इस टाइम रिमाइंडर को कह दिया गया है कि 7 है, x minus 2 का फैक्टर है किसका ना, fx इक्वल्स टू ये नंबर का. सो आपको k का वैल्यू निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए. ओके, अंडरस्टूड द सम. आई गो टू द नेक्स्ट सम.
क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. अच्छा लग रहा है क्लास ना बोरिंग? आई डोंट थिंक सो. प्लीज कोऑपरेट कीजिए. आप लोग कोऑपरेट करते हैं बोल, इसलिए तो मैं पढ़ाती हूँ. ओके चलिए नेक्स्ट सम जाते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है. Find A here. So you have to find out A here. Find A here if the two polynomials. अब देखिए आप लोग एक पॉलिनोमियल का फाइंड आउट कर रहे थे, अब दोनों पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ A if the two polynomials. A क्या होता है? A एक्स क्यूब. A एक्स क्यूब that is plus 3x square plus 9. No sorry, minus 9. एक पॉलिनोमियल होता है ये. एंड 2x क्यूब और एक पॉलिनोमियल क्या होता है 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a प्लस 4x प्लस a. ओके सो find A if the two polynomials ax cube plus 3x square minus 9 and 2x cube plus 4x plus a leaves the same remainder. Okay, so leave the same remainder when divided by x plus 3. So अगर x अपना का फैक्टर क्या है x plus 3. अगर ये दोनों को x plus 3 से हम लोग डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर निकलता है. क्या निकलता है? सेम रिमाइंडर that is same remainder that is divided by x plus 3. अच्छा देखिए ये है fx. so ये होता है fx. fx equals to ax square plus 3x square minus 9. so x plus 3 here equals to 0. that is x equals to what? minus 3. so put the value here. so if that is minus 3. so if minus 3 equals to a multiplied by minus 3 cube plus 3 multiplied by minus 3 square. ऐसे छोटे जगह में नहीं हो रहा है, चलिए छोड़ देते हैं इसे. so fx. so if x equals to minus 3. so if minus 3 that is a multiplied by minus 3 cube plus 3 multiplied by minus 3 square minus 9 here. इसको बाद में दिखा जाएगा. so here minus 3 cube is minus 27. that is minus 27a. minus 3 square is 9. 9 3s are 27. so plus 27 minus 9. so minus 27a. 27 minus 9 is 18. okay ये फर्स्ट ये फैक्टर का फर्स्ट पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना निकलता है? minus 27a plus 18. ओके नाउ चले सेकंड वन का. इसको भी सेम फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. सो ये क्या होता है? दैट इज fx इक्वल्स टू, ये छोटा करके लिख देती हूँ. fx इक्वल्स ऐसा, तो x कितना है ना f minus 3. ओके इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय minus 3 क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय minus 3 प्लस a. दैट इज minus 3 क्यूब इज minus 27. minus 27 into minus 54 plus minus 4 3 is a 12 here plus a minus 54 27 to 54 minus 12 plus है. ओके सो इसका रिमाइंडर क्या होता है? सो a minus 12 plus that is 6 and 6. a minus 66. so here is remainder a minus 66 and here is remainder minus 27a plus 18. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में रिमाइंडर इज द सेम. मतलब ये इक्वल्स टू ये. समझ में आया
क्योंकि ये बोला था कि आपको ए का वैल्यू निकालना है जब फैक्टर है x प्लस 3। नाउ ये दोनों का जो रिमाइंडर निकलेगा वो होगा इक्वल रिमाइंडर। सो दिस वन इज इक्वल टू दैट वन। सो व्हाट यू हैव टू राइट नाउ, सो यू कैन राइट हियर minus 27a plus 18 is equals to a minus 66. Okay, understood? So a को इस तरफ लाइए, so minus 27a minus a equals to minus 66 minus 18 here. So 27a and a minus 28a equals to 8 plus 6 14, 1 carry, that is 84. So cancel this one. So a equals to 84 divided by 28, मतलब a is equals to 3 here. So value of a is 3 here. Understood the sum? आपको फैक्टर बोलना है, आपको a फिक्स बता दिया है, दोनों पॉलिनोमियल बता दिया है, बोला है कि सेम रिमाइंडर निकलेगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर ये है, इसमें रिमाइंडर ये है, मतलब दोनों को इक्वल कर दीजिए, आप x का वैल्यू आराम से निकल जाते हैं। Understood the sum? So we'll go to the next sum. क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मैं जब आप लोगों को कंसेप्ट दे रही थी, आप लोग सोच रहे थे a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब सम करते हैं देखिए कितना इजी सम्स है, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। एंड कैलकुलेशंस एकदम बिल्कुल टफ नहीं है। Okay, question number 5 now. By factor theorem, show that x plus 3 and x plus 3 and 2x minus 1 are factors of 2x square plus 5x plus 3. So 2x square plus 5x, minus 3. Okay. 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपको क्या एक देखिए, आप इस बार एक ही पॉलिनोमियल दिया है, आपको ये बता दिया है कि देखिए x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है, अब 2x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, ये आप लोगों को देखना है, मतलब दोनों में सेम आंसर निकालते हैं। तो देखिए चलिए पहले जब लेते हैं x प्लस 3, सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 3। तो इसको लेके हम लोग क्या करते हैं, f माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, so minus 3 square is 9, so 2 multiplied by 9, 5 is 15, so minus 15 minus 3, so 2 9s are 18, minus 18, so 0। अगर ये किसी भी फैक्टर से ऐसे करने से 0 आता है, that is it is completely this polynomial is completely divided by divisible by x plus 3, that is this factor। ओके, अगर 0 आता है, रिमाइंडर आता है, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर 13 को हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 1 निकल जाता है, 6 2 से 12, तो 1 रिमाइंडर निकल जाता है, मतलब 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सो अगर 0 हो जाता है, सो दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस फैक्टर। तो चलिए, तो पहला वाला हो गया, अब सेकंड वन। सो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको तो 0 आ गया, तो बात छोड़िए, अब इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। सो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x इक्वल्स टू 1, दैट इज x इक्वल्स टू 1/2 हियर। ओके, तो चलिए हम लोग लेते हैं fx। सो f 1/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 3 हियर। तो चलिए देखते हैं 0 आता है क्या नहीं। अगर 0 आता है तो मतलब ये दोनों फैक्टर, ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस वन एंड दैट वन। ओके, सो चलिए, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस 5/2 माइनस 3, सो कट हियर, सो 1/2 प्लस 5/2 minus 3/1, so 2 here, so 1 plus 5 minus 6,
So 1 plus 5 is 6 minus 6 by 2 that is 0 divided by 2 that is 0. So यह 0 निकल गया मतलब 2x minus 5 is the factor of fx 2x square plus 5x minus 3. Okay, so आपको शो करने के लिए बोला था कि देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का ये दोनों कम फैक्टर है क्या नहीं, तो हम लोग क्या फाइंड आउट किए, दोनों का ही डिवाइड करने से ये 0 आता है, दैट इज देयर फैक्टर्स ऑफ दिस fx. अंडरस्टूड. सो चलते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6. आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं? चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. मैं आप लोग को होमवर्क नहीं देती हूँ क्या? मैं मेरा किसी भी स्टूडेंट को मैं होमवर्क नहीं देती हूँ. मैं कहती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, मैं वो सिखा दूंगी. आपका तो मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सो आप तो मेरे सामने कह नहीं सकते, सो प्लीज कमेंट मी टू योर कमेंट बॉक्स. तो मैं ये सम्स जो सम आप लोगों को टफ लगे वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं सिखा दूंगी. ओके, नेक्स्ट. Using the remainder and factor theorem, factorize the following polynomials. देखिए x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26. x क्यूब प्लस 10x minus 37x plus 26. So what is the question? Using the remainder and factor theorem, factorize the following. Remainder and factor theorem मतलब remainder theorem भी आपको यूज करना है, अब factor theorem भी आपको यूज करना है. So मैम ये क्या सम है? कोई तो फैक्टर नहीं दिया है, एक बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ ही तो नहीं बोला है. बोला तो है. देखिए मैं दूसरा टाइप का सम है, मैं आप लोग को सिखा देती हूँ. तो चलिए fx क्या हुआ है, fx इक्वल्स टू ये. तो हम लोग को कोई फैक्टर नहीं बोला गया कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो उसके जरिए से हम लोग x इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं, उसके बाद वो इसके सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते. देखिए तब क्या करना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 26. सो 26 को आप लोग फैक्टराइज कर लीजिए. 26 क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 26 ऐसा होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 26 ये भी तो 26 होता है. 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी होता है, माइनस 13 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 ये भी तो होता है, 26 होता है. मतलब फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 13 एंड प्लस माइनस 26. इतना सारे है, मतलब 1 2 3 4 मतलब प्लस माइनस है बोल के दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स है इधर. इसके किसी का एक रैंडम मैं चूज कर लेती हूँ, किसी की एक के साथ ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तब वो हो जाता है फैक्टर. तो चलिए हम लोग देखते हैं. चलिए पहले लेते हैं -1, उसके बाद +1, ना मिले तो +2 -2 ऐसे लेते हैं. सो पहले लेते हैं -1 लेते हैं. ओके, +-1 तो पहले मैं -1 ले लिया, मतलब -1 क्यूब प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई -1 10 मल्टीप्लाइड बाई -1 स्क्वायर माइनस 37 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 26. देखिए 0 आता है क्या नहीं, ठीक है. अगर 0 आता है तो ये -1 क्या होता है, इसका फैक्टर होता है. ओके, दैट इज so -1 cube is -1, 1 square is 1 and multiplied by 10, so plus 10 here, minus plus 37 here plus 26. ओके, सो देखिए -1 इतना सारे प्लस है, इतना सारे प्लस है, ये -1 है तो 0 आएगा नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं.
तब हम लोग क्या करते हैं 1 लेते हैं। तो चलिए 1 लेते हैं, हम लोग 1 लिया है। -1 इसका फैक्टर नहीं है। सो चलिए 1 स्क्वायर 1 1 ऐसे लिया है, तो देखिए क्या होता है। सो 1 क्यूब इज 1, 10 multiplied by 1 square is 10. Okay, 1 multiplied by 37 is -37 plus 26. So 1 plus 10 11, 11 plus 26 37 here. So 37 minus 37, yeah, it is 0. So 1 is the factor here. Okay, 1 is the factor here. So what you have to write? 1 is the factor, then x minus 1 equals to 0. क्यों? अगर x माइनस, ये तो 1 हुआ था, हम लोग मैं क्यों x माइनस 1 लिखे? क्योंकि x माइनस 1 लिखने से तो x इक्वल्स टू 1 आएगा ना, समझ गया? ये होता है कंसेप्ट है। x माइनस 1 इक्वल, ये 1 निकला है मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर इज x माइनस 1, क्योंकि आप लोगों को x इक्वल्स टू 1 लिखना चाहिए, तब तो ये हमें x 1 बैठा सकते हैं ना। सो आप लोगों को क्या लिखना है, इधर 1 लिखना है, तो आप लोगों को x माइनस 1 फैक्टर लेना पड़ेगा। सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर हियर। तो चलिए ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया, क्योंकि इसको रिमाइंडर से ये रिमाइंडर निकला है क्या? नहीं, रिमाइंडर नहीं निकला, 0 लिखा गया, मतलब रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग को अगर फैक्टर नहीं बोला गया है तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं फैक्टर में, फैक्टराइज करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं, उसमें एट रैंडम कोई भी एक फैक्टर इसमें डिविजिबल हो जाता है। देखिए पहले हम लोग -1 लिए थे, तो वो तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, हम लोग क्या करते हैं 1 को ले लिया है, अच्छा 1 से तो मिल गया, लेकिन तो मैम अब 2 नहीं लेते, नहीं लेते, ये एक को अगर रिमाइंडर थ्योरम से अगर एक निकाल देते हैं, बाकी हम लोग फैक्टर थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग सम सर। देखिए सो x माइनस 1 हो गया फैक्टर, तो चलिए अब x माइनस 1 से इसको डिविजन एल्गोरिथम, दैट इज डिविजन करते थे, x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। ओके, सो x माइनस 1 से ये डिविजन करते थे। सो इसमें x क्यूब 1 लाना चाहिए, तो हम लोग x स्क्वायर ले लेते हैं, डिविजन तो आप लोग सीख चुके हैं ना पहले। ओके, सो x क्यूब हियर, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो x क्यूब हियर माइनस x स्क्वायर हियर, -1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं, मतलब साइन इंटरचेंज कर देते हैं, सो ये कट गया। सो प्लस 10x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 11x स्क्वायर हियर। आप इसको इधर लेके चले माइनस 37x। सो 11x स्क्वायर को करने के लिए क्या करना चाहिए, 11x लेना चाहिए। सो हम लोग ये 11x लिखे हैं, सो 11x मतलब 11x मल्टीप्लाइड बाय x इज 11x स्क्वायर, सो माइनस 11x, सो माइनस 11x हियर, सो इंटरचेंज द साइन, सो कट गया है, सो माइनस 37 माइनस 37x प्लस 11x, दैट इज माइनस 26x। आप इसको लेके चले आइए, सो हियर इज 26 हियर, so now you take your minus 26. Why minus 26? Because symbol is the same. अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो जो इसमें साइन होता है इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा। So minus 26. So minus 26x minus minus plus. So plus 26 here. So interchange the sign here. So ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो आपको क्या फैक्टर निकलता है, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 है, x माइनस 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। सो आप देखिए एक तो x माइनस 1 एक तो फैक्टर हुआ ही है, अब क्या है, ये रहता है, अब होता है x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26, इसका क्वेश्चन निकला है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर से, क्योंकि आपको बोला है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग ये निकाल चुके हैं। ओके, अब फैक्टर थ्योरम में हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। सो क्या होता है, देखिए 26 मतलब 13 2 are 26 and 13 minus 2 is 11 here. Okay, so x square plus 13x minus 2x minus 26. Okay, so x कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस 13 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 13, सो हियर x प्लस 13 एंड x प्लस 13 इज कॉमन,
सो x प्लस 13 हियर, सो क्या रह जाता है x माइनस 2 हियर। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों फैक्टर निकाल सकते हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अंडरस्टूड? सो फैक्टर्स ऑफ, सम खत्म ही हो गया, आप मत सोचिए अब जो बहुत बड़ा सम है, ऐसा नहीं है। सो फैक्टर्स ऑफ, आपको क्या लिखना चाहिए, सो फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 इक्वल्स टू x माइनस 1, रिमाइंडर थ्योरम से पहले निकाले आप, x माइनस 2 एंड x प्लस 13। अंडरस्टूड द सम? सो आप लोगों को इसको कांस्टेंट टर्म से हम लोग क्या किया है, रैंडम लेके हम लोग फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर एक फैक्टर निकाल गया है रिमाइंडर थ्योरम से, और वो आप डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ये फैक्टर से। सो ये फैक्टर करने से हम लोग को फिर से क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं ये इसको फिर मिडिल टर्म फैक्टर करके ये दोनों निकाल देते हैं, है ना। अगर ये दोनों निकल गया मतलब ये एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 का तीनों फैक्टर है, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 13। अंडरस्टूड? सो चलते हैं नेक्स्ट सम। ओके, इट्स द लास्ट सम आई एम टेलिंग। ओके, मुझे तो सम बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को अच्छा लगा है कि नहीं? देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तब अच्छा लगता है, पहले पहले टफ लगता है, सभी चैप्टर, नॉट ओनली मैथ्स, किसी भी चैप्टर बोलिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, किसी भी चैप्टर आप लोगों को टफ लगता है, लेकिन 2 चैप्टर प्रैक्टिस कीजिए तब होता है अच्छा ये तो इजी है, इतना तो टफ नहीं है ना। सो लास्ट सम है, ये थोड़ा लेंथी है। इफ x plus 2 is a factor of 2x cube, so x plus 2 is a factor, x plus 2 is a factor of, no sorry, x minus 2 here, if x minus 2 is a factor here of किसका factor, 2x cube minus x square plus px minus 2, 2x cube minus x square plus px minus 2। ओके, इसका क्या फैक्टर, if x minus 2 is a factor of 2x cube minus, that is here fx equals to 2x cube minus x square plus px minus 2, then find the value of p, दोनों पार्ट है, find the value of p and factorize the above expression completely। ओके, सो पहले फैक्टराइज किया जाएगा, पहले तो p का वैल्यू निकालते हैं। ओके, आपको फैक्टर बोल दिया है x minus 2 is a factor. Okay, so x minus 2 is a factor, that is x minus 2 equals to 0, implies that x equals to 2 here. So if 2 here, that is 2 multiplied by 2 cube minus 2 square plus p multiplied by 2 minus 2 equals to 0, क्यों, ये फैक्टर है। ओके, फैक्टर है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, दैट इज 2 cube 8, 8 to the 16 minus 4 plus 2p minus 2 equals to 0 here. So 16 minus 4, 16 minus 4 is 12. 12 minus 2, that is 10. 10 plus 2p equals to 0, that is 2p equals to minus 10, that is p equals to minus 5 here. So p का वैल्यू कितना होता है, minus 5। Understood? Understood? ये आपको बोला है कि x माइनस 2 एक फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 फैक्टर है, दैट इज x इक्वल टू 2 है, तो fx का जगह में हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसके लास्ट में 0 क्यों लिखते हैं ना, ये तो फैक्टर ही है, तो फैक्टर से तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए fx इक्वल टू उधर 0 हो जाता है, 0 होता है, उसके जरिए से हम लोग p का वैल्यू -5 निकलते हैं। तो सब पार्ट 1 तो हो गया, सब पार्ट 2 में क्या बोला है, फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। सो इसको फैक्टराइज करें, तो मतलब क्या है, आपको ये p का जगह में -5 दिखे पहले, ठीक है, तो p का जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, -5, सो ये प्लस को हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस -5x। अंडरस्टूड? प्लस माइनस -5x। ओके, सो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए चलिए फटाफट हो जाता है। फैक्टर जस्ट लास्ट सम में जो सिखाई हूं वही होगा।
सो 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, पी का जगह में -5 बैठा है ना। सो उसको क्या करते हैं ना, x माइनस 2 से इसको डिवीजन करते हैं। तो क्या होता है, तो 2x माइनस 2 दैट इज, पहले 2x² लिखना चाहिए, तो मतलब हम लोग को क्या लिखना चाहिए, 2x लिखना चाहिए। 2x लिखना चाहिए। 2x multiplied by x is 2x². So 2x multiplied by x is 2x³ था। तो इसमें 2x² लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब था, मैंने पहले स्क्वायर लिख दी थी, सॉरी, सो इसलिए मैं 2x लिखी थी। सो 2x² multiplied by x is 2x³ here. So 2 2s are 4 minus, so minus 4x² here. So साइन इंटरचेंज कीजिए, so कट गया है, so plus 4x² minus x² that is plus 3x². Okay, minus 5x here, so you have to omit 3x². So plus 3x लिखना चाहिए आपको, so 3x that is plus 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, 6x हो गया। तो चलिए साइन इंटरचेंज कीजिए, ओके, दैट इज एक कट गया है, so 6x minus 5x is x minus 2 here, so plus 1 लिखिए, क्योंकि इस तरफ x है, so 1 multiplied x is x है, minus 2 multiplied 1 is minus 2 है, ओके। सो क्या है, इसको प्लस लिखिए, सॉरी इसको माइनस लिखिए और इसको प्लस लिखिए, सो कट गया है। मतलब x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो qx कितना निकलता है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, सो 2x² प्लस 3x प्लस 1। जस्ट प्रीवियस सम जैसे किए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म में, ओके। 2 multiplied 1 is 2, 2 multiplied 1 is 2, सॉरी 2 multiplied by 1 is 2 and 2 plus 1 is 3, 2 plus 1 is 3 here, so 2x² plus 2x plus x plus 1 here, okay, so 2x कॉमन ले लेते हैं, x plus 1 here plus 1 कॉमन लेते हैं, x plus 1 here, so x plus 1 is common, so you have to write it x plus 1 and 2x plus 1, that is factors of 2x³ minus x² minus 5x plus 2 equals to, पहले x minus 2 निकाल चुके थे, x minus 2 x plus 1 and 2x plus 1, understood। पहले इसके जरिए से हम लोग x minus 2 हम लोग को बता ही दिया था कि वो उसके जरिए से हम लोग इसका p का वैल्यू निकाल चुके थे, तो x minus 2 एक फैक्टर है, उससे ये fx को पॉलिनोमियल को हम लोग डिवीजन किए हैं, उसके डिवीजन के बाद क्या है, ये क्वेश्चन निकला है, उस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज करने से हम लोग को और दोनों निकाल जाते हैं, मतलब तीनों फैक्टर्स है x minus 2 x plus 1 and 2x plus 1, okay, and this is the last sum I am teaching you, that is the 9th sum। नहीं सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, नहीं चलिए हम सिखा ही देते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, अब थोड़ा पेशेंस रखिए, ये सीख लीजिए। ओके, बहुत टाइम लिखे है ना, इसलिए बोर्ड अच्छी तरह से इरेज नहीं कर पाती मैं। Last one is, if x plus 3, if number 9, x plus 3 and x minus 4, if x plus 3 and x minus 4 are factors of x³, किसका फैक्टर, x³ plus ax² minus bx plus 24, okay, plus 24. If x plus 3 and x minus 4 are factors of x³ plus ax² minus bx plus 24, with the values of a and b, factor is the given expression, okay। देखिए क्यों ये सीखने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक a निकाल चुके हैं, a निकाल चुके हैं, एक है,
लेकिन इसमें दोनों ए भी नहीं जानते बी भी नहीं जानते, ठीक है। तो हम लोग को पहले ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 24, ओके। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। सो एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स इक्वल्स टू -3। इसके जरिए से एक इक्वेशन निकालते हैं। देखिए मतलब ए एक्स इक्वल्स टू ये, ओके। सो अब एक्स की जगह में हम लोग 3 लिखते हैं। सो ए -3 इक्वल्स टू -3 क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई -3 स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 24 here. So -27 plus 9a plus 3b plus 24 here. So 9a plus 3b, 9a plus 3b, 24 minus 27 is -3, okay. So dividing by 3 क्योंकि इस सब में 3 है। So 3a plus b minus 1। आप इसको लिखिए 3a minus b 3a plus b minus 1 equals to 0। क्यों? ये फैक्टर है, so completely divisible है। So implies that 3a plus b minus 1 equals to 0, that is 3a plus b equals to 1। This is the first equation, understood? Now this is the sum। now ये ले लेते हैं x minus 4, ये फैक्टर है। so x minus 4 equals to 0, so x equals to 4, x minus 4 equals to 0, that is x equals to 4 here, understood? So now put the value of 4 here। So put the value 4 here। So 4 cube plus a multiplied by 4 square multiplied by b minus b multiplied by 4 plus 24, that is 4 cube is 64 plus 16a minus 4b plus 24 equals to 0। आपको लिखना है, पहले सॉल्व कर लेती हूँ उसके बाद। So 64 plus 24, 64 plus 68 78 88, so 88 plus 16a minus 4b। so ये 4 से डिवाइड कर देते हैं। so 22 plus 4a minus b, इसको इम्प्लाइज करते हैं। so implies 22 plus 4a minus b equals to 0, that is 4a minus b equals to -22। 4a minus b equals to -22। it is equation number 2 here, okay। so देखिए इक्वेशन नंबर में 1 था, प्लस बी इसमें है -b। so प्लस बी माइनस बी अगर हम लोग को हो गया तो बाय एडिंग, so हम लोग ये लिख सकते हैं। so ये इरेज कर देते हैं। so देखिए मैं नहीं लिखे हैं इधर और। so 3a plus b equals to 1, ये लिख देते हैं। 3a plus b equals to 1, okay। now by adding, so हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडिंग करने का टाइम में साइन इंटरचेंज का बात नहीं होता है। so 7a ये तो कट गया है, 7a मतलब क्या होता है -21, that is a equals to -3 here, understood? so a equals to -3, okay। now b equals to, so देखिए 3a plus b equals to 1, you know 3a plus b equals to 1, so 3a plus b equals to 1। a का वैल्यू बैठा देते हैं इधर, 3 multiplied by -3 plus b equals to 1, so ये होता है -9, that is b equals to 1 plus 9, that is b equals to 10 here। so b का वैल्यू 10 लिखते हैं, understood the sum? so now what to do, अब a और b का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब उसके बाद में उसका फैक्टराइज करना है। क्योंकि वो क्या बोला था,
find the value of a and b and factorize the expression. So ये था हमारा पॉलिनोमियल, तो आप लिखिए एक्स क्यूब प्लस ए मतलब -3, मतलब प्लस माइनस -3x² माइनस bx दैट इज -10x प्लस 24. एक्स स्क्वायर का जगह में हम लोग -3x² माइनस bx -10x प्लस 24, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. तो हम लोग फैक्टर क्या जानते हैं, एक x+3 है और एक x-4 है. ठीक है, तो किसी भी एक को लेके हम लोग इसका डिवीजन कर सकते हैं क्योंकि फैक्टराइज करना है. तो चलिए x+3 ले लेते हैं. अब इसको भी चूज कर सकते हैं, x-4 को भी आप लोग चूज कर सकते हैं. सो x+3, सो x³ दैट इज x² मींस x³ प्लस 3x² प्लस 3x². ओके, इंटरचेंज द साइन, दैट इज कट गया है, -6x² माइनस 10x हियर. So -6x here, 6 minus 6 minus 6x², 3 6 18 minus 18x here. So ये साइन इंटरचेंज कर देते हैं, ये माइनस होता है प्लस, ये माइनस होता है प्लस, कट जाते हैं. सो ये क्या होते हैं, 8x प्लस 24. सो इसको हम लोग क्या लेते हैं, 8 लेता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई x. सो 8x प्लस 24 completely divisible. Sign interchange. Okay. Now qx equals to x² minus 6x plus 8. Okay. So इसको फैक्टराइज करते हैं. तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं. So x² minus 6x plus 8 middle term factor. 8 equals to 4 multiplied by 2 and -4 minus 2 equals to -6 here. Okay. So 4 2s are 8. x² minus 4x minus 2x plus 8 here. So x ले लेते हैं x minus 4, minus 2 ले लेते हैं x minus 4. So x minus 4 is common here. So x minus 4, x minus 2. इतना सारे फैक्टर सही है. So पहले तो हम लोग को क्या बोल दिया था, x+3 and x minus 4, ये तो पहले दोनों था ही, है ना. So इसका fx x³ प्लस ax², इसका फैक्टर कितना हो रहा है, इसका फैक्टर हो है, पहले ही था x+3 x-4 था पहले, अब एक हो गया क्या, x-4 हम लोग लिख चुके हैं. सो x-2 हियर. सो x-2. अगर हम लोग x-4 से डिवीजन करते तो ये हमें x+3 आता. ठीक है, हम लोग x+3 से डिवीजन किया है तो x-4 आया है. अगर x-4 से डिवीजन करते तो ये हमें x-3 आता. सो 3 फैक्टर्स आर x+3, x-4 एंड x-2 हियर. अंडरस्टूड द सम. सो हम लोग डिफरेंट सम सीखे हैं इस टाइम में. आप लोग को कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए थ्रू योर कमेंट बॉक्स. सो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट क्लास में मैं ये सिखा देती हूँ. सो जाते जाते मुझे क्या बोलना चाहिए, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कमेंट मी थ्रू योर कमेंट बॉक्स. फिर से मैं कहा, ठीक है. तो चलिए आप लोग घर में रहिए, आराम से रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा खेलते भी रहिए, आराम से रहिए. सो बाय, ज्वाइन इन द नेक्स्ट क्लास.